ट्रंप के बीच अमेरिका में शांति वार्ता हुई है, जिसमें ज्यादातर बिंदुओं पर सहमति बन गई है, ये कहा जा रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बाकी बिंदुओं पर भी सहमति बनेगी, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या रूस इन बिंदुओं पर सहमत होगा। अब थम जाएगा युद्ध। ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात। कीव क्रेमलिन के बीच बनेगी बात। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 4 साल से जारी जंग के बीच एक नया मोड़ आया है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की, जिसके बाद उम्मीद जताई गई कि अब यह जंग थम सकती है। ट्रंप के आवास पर बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि इसमें रूस और यूक्रेन के बीच विवादित बिंदुओं में से ज्यादातर पर सहमति बन गई। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच 20 पॉइंट्स के शांति समझौते पर चर्चा की गई। ट्रंप ने शांति समझौते पर करीब 90% सहमति बन जाने का दावा किया। Had a terrific meeting. We discussed a lot of things. As you know, I had an excellent phone call with President Putin that lasted for over 2 hours. We discussed a lot of points, and I do think we're getting a lot closer, maybe very close. The President and I just spoke to the European leaders. They were President Emmanuel Macron of France, President Alexander Stubb of the Republic of Finland, President Karol Nawrocki of the Republic of Poland, Prime Minister Jonas Gahr Store of the Kingdom of Norway, Prime Minister Giorgia Meloni of the Italian Republic, Prime Minister Keir Starmer of the United Kingdom of Britain and Northern Ireland, Chancellor Friedrich Merz, the Federal Republic of Germany, Secretary General Mark Rutte, the North Atlantic Treaty Organization, NATO, President Ursula von der Leyen of the European Commission. We spoke to all of those great leaders. They're all great leaders. And we had a great talk with them after we were completed. We thought it was appropriate to speak with them. And our meeting was excellent. We covered, somebody would say 95%. I don't know what percent, but we have made a lot of progress. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन दोनों ही वास्तव में शांति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नेता जंग को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि इस बीच ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिससे दुनिया की टेंशन बढ़ सकती है। ट्रंप ने माना कि इस वार्ता के बाद अगर बात बनी तो अगले कुछ हफ्तों में ही जंग थम जाएगी, बंदूकें और तोपें शांत हो जाएंगी,
लेकिन अगर बात नहीं बनी तो युद्ध लंबा चल सकता है। If it went really well, maybe a few weeks, and if it went poorly longer, and if it went really poorly, it's not going to happen. That would be a shame. There's that chance also. It's possible it doesn't happen. ट्रंप से बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि ये जंग थम सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन की टीम के बीच अच्छी बातचीत हुई और कई मुद्दों पर लगभग 100% सहमति बन गई है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन स्थायी शांति की ओर बढ़ना चाहता है। And we had a really great discussions on all the topics, and we appreciate the progress that was made by American and Ukrainian teams in these recent weeks. Special thanks to Steve Witkoff and Jared Kushner, and thank you for their engagement and full commitment, and also to our team, and first of all to Rustem Umerov and General Gnatov, and to all our teams. And we discussed all the aspects of the peace framework, which includes, and we have a great achievements, 20-point peace plan, 90% agreed, and U.S.-Ukraine security guarantees, 100% agreed. U.S.-Europe-Ukraine security guarantees, almost agreed. Military dimension, 100% agreed. Prosperity plan being finalized, and we also discussed the sequencing of the following actions. And we agree that security guarantees is a key milestone in achieving lasting peace, and our teams will continue working. उधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन शांति समझौते के लिए आगे नहीं बढ़ा तो रूस सैन्य ताकत से अपने लक्ष्य हासिल करेगा। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन शांति के लिए कोई जल्दी नहीं दिखा रहा है, ऐसे में रूस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच शांति वार्ता के दौरान करीब 90% बिंदुओं पर सहमति बन गई। इस दौरान यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी पर दोनों ही पक्ष 100% सहमत हो गए। खबरों के मुताबिक क्षेत्रीय विवाद को सुलझाने के लिए ज़ेलेंस्की जनमत संग्रह कराने के पक्ष में हैं, लेकिन ट्रंप का कहना है कि पुतिन जनमत संग्रह के लिए तैयार नहीं है। क्रेमलिन का कहना है कि युद्ध विराम का इस्तेमाल यूक्रेन अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए करेगा। समझौते में सबसे बड़ा विवाद डोनबास क्षेत्र को लेकर है। रूस इसे अपना हिस्सा मानता है, जबकि यूक्रेन अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि ये शांति वार्ता सफल होगी और इस बैठक में तय किए बिंदुओं पर रूस भी राजी हो जाएगा, ताकि दुनिया एक और जंग की आग में झुलसने से बच जाए।